Welcome students. In the previous video, we learned some basic adjustments regarding accounts of insurance companies. Now we will learn the next adjustment. Next term is annuity. It is annual payment which an insurance company guarantees to pay to the insured throughout his life in consideration of a lump sum money paid by the insured in the beginning. क्या मतलब है इसका कि अगर एक पर्सन ये चाहता है कि उसको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो इंश्योरेंस कंपनी के पास स्टार्टिंग में एक लंप सम ह्यूज अमाउंट डिपॉजिट करवा दे। इंश्योरेंस कंपनी उसकी किश्तें बना देती है, इंस्टॉलमेंट्स बना देती है, वही इंस्टॉलमेंट एन्युटी कहलाती है और वो इंस्टॉलमेंट हर ईयर कंपनी की तरफ से उस पर्सन को दी जाती है जिसने वो अमाउंट स्टार्टिंग में डिपॉजिट करवाया। सो एन्युटी पेड is an expenditure for the insurance company and it is shown under schedule 4. Consideration for annuities granted क्या हुआ फिर? जो अमाउंट lump sum पर्सन ने पहले जमा कराई उसे हम क्या कहेंगे? Consideration for annuities granted. Look, for example, a person deposits rupees 1 lakh with the insurance company in the beginning and the insurance company guarantees to pay him rupees 20,000 per annum as long as he lives. In this example, rupees 20,000 represents an expenditure of the insurance company and it is to be included in the schedule 4. जबकि जो 1 लाख रुपीस उस पर्सन ने पहले डिपॉजिट कराए वो क्या कहलाएगा? Consideration for annuities granted and it will be shown in the revenue account under the head other income. Next term is surrender value. If a policy holder is unable or does not want to pay further premium on his policy, he can surrender his policy to the insurance company. किसी की कोई मजबूरी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि वो अपनी पॉलिसी ले तो ली बट उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब कंटिन्यू नहीं कर सकता तो दैट मीन्स ही इज नॉट एबल टू पे द प्रीमियम्स। पर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। अब अगर ऐसे केस में जब वो अनेबल है प्रीमियम पे करने के लिए तो वो उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। अब सरेंडर वैल्यू क्या होगी? Surrender value is the amount which a policy holder can get immediately in cash from the life insurance company in the event of his surrendering all the rights of the policy. Amount paid as surrender value is an expenditure for the insurance company and as such it is shown under schedule 4 along with the claims. जितना amount वो अब तक प्रीमियम्स के तौर पर पे कर चुका है जनरली उसका कुछ पार्ट कंपनी अपने पास रख के बाकी जो है वो उसको वापस कर देती है। दैट इज नोन एज द सरेंडर वैल्यू। द नेक्स्ट टर्म इज बोनस. A part of the profits of the life insurance companies are distributed to with-profit policyholders as bonus. As per the provisions of IRDA Act, 1/9 of the profits is allocated as bonus to the policy holders in case of with profit policy. जैसा पहले भी बताया था कि with profit policy का मतलब है कि उनको बोनस यानी कि प्रॉफिट्स में से भी शेयर मिलता है. Such bonus can be paid to the policy holders in either of the two ways. Number one, it is bonus in cash. It is paid in cash immediately on the declaration. जैसे ही डिक्लेयर किया कैश पेमेंट उनको दे दिया as bonus. Second is reversionary bonus. What is it? It is credited to the policy holder's account and is paid only on the maturity of the policy along with the policy money. यानी कि हम उनके अकाउंट में लिखते रहते हैं बट पे कब करते हैं? जब मैच्योर हो जाती है पॉलिसी तो पॉलिसी के अमाउंट के साथ इस अमाउंट को पे किया जाता है. नेक्स्ट इज बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम. क्या है ये? जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम की अमाउंट को रिड्यूस कर दे बाय गिविंग सम काइंड ऑफ बोनस. जैसे हमने एक तो कैश में बोनस दे दिया और एक उनको बोला कि प्रीमियम पे करना नहीं पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, तो वो भी एक तरह का क्या हुआ? बोनस हुआ. सच ए रिडक्शन इन प्रीमियम इज टर्म्ड एज बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम.
It is an expenditure for the insurance company and again it is included in the Schedule 4. In case it is given in the adjustment, it will also be added to the amount of premium in Schedule 1. Next comes policy renewal fees. पॉलिसी को जब कोई रिन्यू करवाना चाहता है, उसका टाइम कवर हो गया, अब वो उसको दोबारा से रिन्यू करा रहे हैं, तो उसको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी. तो जो वो फ़ी पे करेंगे दैट इज़ एन इनकम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी. सो इट इज़ शोन इन द रेवेन्यू अकाउंट अंडर द हेड अदर इनकम. रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज यूजुअली चार्ज सम फीस फॉर रजिस्टरिंग द पॉलिसी. इट इज़ शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड अदर इनकम. Interest, dividend and rents. Amount received as interest on various loans granted by the insurance company and interest and dividend received on various investments is shown in the profit and loss account under the head income from investment. तो अगर पॉलिसी रिन्यूअल फीस है या रजिस्ट्रेशन फीस है, ये भी कहाँ जाएंगे? हमारे अदर इनकम के अंडर. लेकिन अगर कोई इनकम इंटरेस्ट के बेस से आ रही है, डिविडेंड के बेस से आ रही है, रेंट के बेस से आ रही है, तो उसे हम कहाँ शो करेंगे? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स. वन थिंग इज बेड डेट्स. अमाउंट लेफ्ट अनरिकवर्ड आउट ऑफ द एडवांसेस मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड बेड डेट्स. बेड डेट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर ए सेपरेट हेड. बेड डेट्स जनरली आपको पता है, किसी को भी पैसा दिया है, उन्होंने पे नहीं किया तो वो बेड डेट्स कहलाता है. इंश्योरेंस कंपनी ने भी किसी को एडवांस दिया है, उसमें से पैसा वापस नहीं आया तो वो इंश्योरेंस कंपनी के बेड डेट्स कहलाते हैं और उनको हम अलग से बेड डेट्स हेड में दिखाते हैं. नेक्स्ट इज डिप्रिसिएशन. इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड प्रोविजंस. इनकम टैक्स. अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी and also the provision made for income tax is shown in the profit and loss account separately under the head provision for taxation. अगर टैक्स पे किया हुआ दिया गया है या प्रोविजन बनाया है, वो दोनों ही चीज़ें किस में आएंगी? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर्स एंड इट कम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड एप्रोप्रिएशंस. डिविडेंड हम तभी देते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, तो ये प्रॉफिट्स का बंटवारा है, इसलिए इसको एप्रोप्रिएशंस के अंडर दिखाया जाता है. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का प्रॉफिट निकालने का तरीका बाकी बिजनेसेस से अलग होता है. इस केस में हमें नेट लायबिलिटी निकालनी पड़ती है. और नेट लायबिलिटी क्या है? The process of computation of net liability is termed as actuarial valuation. एक एक्चुअरी को अपॉइंट किया जाता है, उसका काम क्या है कि वो नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करता है. In order to calculate the net liability, the actuaries calculate the present value of future liability on all the policies in force as well as present value of future premiums to be received on them. क्या मतलब हुआ? हमें फ्यूचर में कितने क्लेम्स देने पड़ सकते हैं उनकी आज की वैल्यू निकालना, और हमें फ्यूचर में कितने प्रीमियम रिसीव होंगे उनकी करंट वैल्यू निकालना. उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, द एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी ओवर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रीमियम इज नोन एज नेट लायबिलिटी. क्योंकि अगर लायबिलिटी जितनी है हमारी, उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू पता लग गया और हमारे पास जितना आना है प्रीमियम वो भी पता लग गया, तो हमारे पास नेट लायबिलिटी आ जाएगी कि हमने टोटल अमाउंट आज की डेट में आज की वैल्यू के हिसाब से कितना पे करना है. सो नेट लायबिलिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रीमियम. इन केस एक्चुरियल के वैल्यूएशन से सरप्लस आता है, तो वो सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस रेगुलेशंस. ए लाइफ इंश्योरर शुड मेंटेन सेपरेटली ए लाइफ फंड फॉर पार्टिसिपेटिंग policy holders and life fund for non-participating policy holders. Failure to comply with these requirements would mean that the life fund maintained by the insurer would be for the benefit of the participating policy holders. तो कितना रिजर्व रखना है ये हमें समझ में आएगा प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन से.
An insurance company should reserve 100% of actuarial valuation surplus for its shareholders in case of life fund maintained for non-participating policy holders. अगर लाइफ फंड नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए मेंटेन किया जा रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा जो सरप्लस बचता है वो शेयर होल्डर्स के लिए रखती है, पॉलिसी होल्डर्स के लिए नहीं। और दूसरा केस क्या है, 1/9 ऑफ द सरप्लस शुड बी एलोकेटेड टू द पॉलिसी होल्डर्स। पॉलिसी होल्डर्स को हम सरप्लस का कितना हिस्सा देंगे, 1/9, अगर लाइफ फंड मेंटेन किया गया है फॉर पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स। द इंश्योरेंस कंपनी वुड हैव टू ऑब्टेन prior approval of IRDA when the allocation is not 1/9 of the surplus. However, the insurance company cannot allocate in excess of 10% of the actuarial surplus to its shareholders. Shareholders को 10% से ज़्यादा नहीं दे सकती है. Now let's talk about how this surplus is distributed. An insurance company should reserve 100% of actuarial valuation surplus for its shareholders in case of life fund maintained for non-participating policy holders. इसका क्या मतलब है कि अगर पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स नहीं हैं तो सारा का सारा सरप्लस किसका है, शेयर होल्डर्स का है, फिर कोई रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स हैं तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर 1/9 ऑफ द सरप्लस शुड बी एलोकेटेड फॉर दैट पॉलिसी होल्डर्स, अगर हमने उनके लिए मेंटेन किया है। द इंश्योरेंस कंपनी वुड हैव टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द IRDA when the allocation is not 1/9 of the surplus. अगर वो कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। However, the insurance company cannot allocate in excess of 10% of the actuarial surplus to its shareholders. Then 10% से ज़्यादा वो किसी भी केस में शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते। Important note: following expenses are directly related to the insurance business and hence they will be taken to the revenue account in the schedule relating to operating expenses related to the insurance business. Starting में भी बताया मैंने, expenses of management, salaries, medical fees, traveling and conveyance expenses, agents allowance and receipt stamps. Following expenses are not directly related to the insurance business and hence will be taken to the profit and loss account. एक बार फिर से पीछे देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेट करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस से, इसलिए उनको हम रेवेन्यू अकाउंट में दिखाएंगे। और यहाँ हमने क्या लिखा है कि ये एक्सपेंसेस इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, इसलिए इनको रेवेन्यू अकाउंट में शो ना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और तीसरी बैलेंस शीट। तो रेवेन्यू अकाउंट में कौन से खर्चे आने हैं ये बताया आपको। अब हम कौन से देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, depreciation, rent rates and taxes, printing, stationery and postage, advertisement, bed debts, legal and professional charges, auditor fees, director fees, bank charges, loss on sale of assets and miscellaneous charges. Following incomes are directly related to the insurance business and hence will be taken to revenue account. जैसे हमने अभी खर्चों की बात की वैसे ही इनकम है, जो इनकम डायरेक्टली इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड है वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगी, जो डायरेक्टली इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो दो इनकम हमने लिखी, कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज ग्रांटेड एंड पॉलिसी रिन्यूअल फीस, दे विल गो टू द रेवेन्यू अकाउंट। इसके अलावा अभी पहले बताया था आपको। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, एंडोर्समेंट फीस, असाइनमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, शेयर ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इनकम टैक्स रिफंड, डिफरेंस इन एक्सचेंज, रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरीज एंड अदर इनकम। सो जो भी हमारी इनकम डायरेक्टली रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड है वो कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज ग्रांटेड एंड पॉलिसी रिन्यूअल फीस, बाकी सारी की सारी हमने कहाँ शो करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अ वेरी इंपॉर्टेंट
Important note. Following expenses are directly related to the insurance business and hence they will be taken to the revenue account in the schedule relating to operating expenses related to the insurance business. Starting में भी बताया मैंने, expenses of management, salaries, medical fees, traveling and conveyance expenses, agents allowance and receipt stamps. Following expenses are not directly related to the insurance business and hence will be taken to the profit and loss account. एक बार फिर से पीछे देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेट करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस से, इसलिए उनको हम रेवेन्यू अकाउंट में दिखाएंगे। और यहाँ हमने क्या लिखा है कि ये एक्सपेंसेस इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, इसलिए इनको रेवेन्यू अकाउंट में शो ना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और तीसरी बैलेंस शीट। तो रेवेन्यू अकाउंट में कौन से खर्चे आने हैं ये बताया आपको। अब हम कौन से देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, depreciation, rent rates and taxes, printing, stationery and postage, advertisement, bed debts, legal and professional charges, auditor fees, director fees, bank charges, loss on sale of assets and miscellaneous charges. Following incomes are directly related to the insurance business and hence will be taken to revenue account. जैसे हमने अभी खर्चों की बात की वैसे ही इनकम है, जो इनकम डायरेक्टली इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड है वो रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगी, जो डायरेक्टली इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो दो इनकम हमने लिखी, कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज ग्रांटेड एंड पॉलिसी रिन्यूअल फीस, दे विल गो टू द रेवेन्यू अकाउंट। इसके अलावा अभी पहले बताया था आपको। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, एंडोर्समेंट फीस, असाइनमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, शेयर ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इनकम टैक्स रिफंड, डिफरेंस इन एक्सचेंज, रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरीज एंड अदर इनकम। सो जो भी हमारी इनकम डायरेक्टली रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड है वो कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज ग्रांटेड एंड पॉलिसी रिन्यूअल फीस, बाकी सारी की सारी हमने कहाँ शो करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Here comes another important point, that is reserve for unexpired risk. ये जनरल इंश्योरेंस के केस में होता है। इन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी इज इश्यूड फॉर 1 year and the premium is received in advance at the time of issue of policy. जो भी कोई जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं वो हम साल में किसी भी टाइम पर ले सकते हैं और वो 1 साल की होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम कंपनी अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रही है हमने पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंगली ली हो, हमने साल के बीच में कभी भी पॉलिसी ली हो सकती है। सो सिंस द पॉलिसीज आर इश्यूड थ्रू आउट द ईयर दे विल रिमेन इन फोर्स इवन आफ्टर क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज हो गया लेकिन पॉलिसी वो कॉन्टिन्यूड है, वो अभी आगे आने वाले टाइम पीरियड में ख़त्म होगी। तो ये हो सकता है कि उसका क्लेम अभी किसी ने नहीं मांगा पर आगे आने वाले पीरियड में मांगे, तो hence a provision must be maintained to meet the claims which may arise on such policies during the next accounting period. This provision is made for the purposes called reserve for unexpired risk, यानी कि वो रिस्क जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ हमने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए खाते बंद कर दिए पर वो पॉलिसी कॉन्टिन्यूड है, आगे वाले साल तक चलेगी, तो उसका जो भी क्लेम तब बन सकता है उसके लिए हमें आज प्रोविजन रखना पड़ता है। दैट इज नोन एज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। वन थिंग इज एडिशनल रिजर्व। द सेम इज टू strengthen the financial position of the company. Such an excess reserve is called additional reserve. जो भी हम अपने किसी unforeseen liabilities को पे करने के लिए बना के रखते हैं उसे हम additional reserve कहते हैं। One is bonus in reduction of premium or no claim bonus. इसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा, आपने बाइक की पॉलिसी करवाई, गाड़ी की पॉलिसी करवाई कि अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो घर में आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पॉलिसी लेने का मतलब कि उसका क्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें नो क्लेम बोनस मिलता है।
तो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम मतलब क्या हुआ, अगर हमें प्रीमियम पे ना करना पड़े या प्रीमियम कम पे करना पड़े, वो भी एक तरह का क्या है, बोनस है. सो पॉलिसी इन जनरल इंश्योरेंस आर टेकन ओनली फॉर 1 year and it has to be renewed after 1 year. Whether the policy is to be renewed from the same company or a fresh policy is taken from some other company, it is a standard practice that the insurance company normally gives a concession in the premium at a specified rate provided that the policy holder has not made any claim. क्या मतलब हुआ कि अगर आपने पॉलिसी ली लेकिन कोई क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर प्रीमियम में आपको कुछ छूट मिलती है, और वो जो डिस्काउंट आपको दिया जाता है प्रीमियम के ऊपर उसे हम कहते हैं बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम या नो क्लेम बोनस. द रेट ऑफ कंसेशन इन प्रीमियम इज इंक्रीज्ड एवरी ईयर, नॉर्मली फॉर 4 years, provided the policy holder does not make any claim during the period. Second क्या है, it is an expenditure for the insurance company and is included in the schedule 2. And in case the item of bonus in reduction of premium is given in the adjustment, it will also be shown to the amount of premium in schedule 1. ये हमने पहले भी बात की थी. अब यहाँ पर आप इसकी एंट्री देखिए, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम. तो हमने क्या किया, प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है तो इसका मतलब प्रीमियम में इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमने इसको खर्चा दिखा दिया क्योंकि हमें ये प्रीमियम एक्चुअल में आएगा नहीं, तो हमने इसको लिखा बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम.